Good morning, guys. So what we'll be doing is a chapter known as cash management, और उसके अंदर हम एक छोटा सा पार्ट डिस्कस कर रहे थे that was known as a cash budget. So we'll take some practical questions on cash budget. Now, a brief idea basically before I start with the word cash budget. As the name tells me, cash budget. It's basically a planning. एक बजट बनाना है कैश पे. बेसिकली हमें ये डिसाइड करना है या ये दिखाना है, कैलकुलेशंस करना है कि कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पे जा रहा है. एंड द बजट कैन बी प्रिपेयर्ड मंथली, इट कैन बी प्रिपेयर्ड क्वार्टरली, it can be prepared fortnightly, that is in 15 days, or it can be even prepared daily. But preparing a cash budget daily becomes too micro in characteristics. So what are we going to do is, normally we prepare a cash budget which is followed monthly. So month-wise Jan, Feb, March, April, May, June and so on. मतलब फॉर्मेट कैसा होगा पता है आपको यहाँ पे? मंथली ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे. सो कॉलमिना वाइज फॉर्मेट. First one, we'll start with something that is known as details. Jan, Feb, March, April, May, 1, 2, 3 and it keeps on going so on as the question tells you. तो जितने months का preparation करना होगा उतने columns बनेंगे हमारे. Second, the formatting starts with first one, A, that is opening balance. B will be inflows. Inflows मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है. अभी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो where does the money flow in from? The money will flow in from cash sales, or the money will flow in from receipt from debtors. Regular cash sales regular होगा, receipt from debtors regular होगा, and then we can get money on interest, dividend, question specific. It does not come all the month, but cash sale, receipt from dividend तो regular. So inflows लिखेंगे, A opening balance, B inflows, फिर total of inflows करेंगे, that is B. उसके बाद next line पे हम लोग करेंगे A plus B, that is opening balance plus the inflows. Next one will be C, that is outflows. Now inflows are very few because वैसे ही हमें पता है पैसा आने का ऑप्शंस बहुत कम होता है, जाने का ऑप्शंस तो बहुत ही ज़्यादा होता है. सो वी कैन हैव रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मैनी एक्सपेंसेस, ऑल दी एक्सपेंसेस. नेक्स्ट लाइन हम C का टोटल करेंगे और लास्ट लाइन पे वी विल से D, that is closing balance. ब्रैकेट में हम लिखेंगे A plus B minus C. That will be your closing balance. Closing of one month will follow the opening of next month. Now this is the cash budget. Opening, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है. Simple calculations. Are we clear with that part? What does this cash budget help you is to understand कि कौन से मंथ में हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. दिस इज एस्टिमेशन. दिस इज नॉट कैलकुलेशन ऑफ द पास्ट मंथ्स, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर मंथ्स. आगे के मंथ्स का कैलकुलेशन है. तो ये हमें बेसिकली हेल्प करेंगे कि पैसा हम कहाँ पे अप्लाई करें, कहाँ से आएगा. और अगर एक मंथ में कहीं पे शॉर्टेज दिख रही है तो हम पहले से प्लानिंग करके रखें. करेक्ट है. सो ओवर द पीरियड हम देखते जाएंगे इसकी यूटिलिटीज़ क्या है. बट हैव अ लुक एट वन क्वेश्चन फर्स्ट, फिर थोड़ी ज़्यादा अच्छी आइडिया आएगी आपके पास. आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 1. Ramesh has given the sales forecast for Jan to July 2012 and actual sales for November and December 2011. Jan to July का forecast है, November और December का actual sales है. While other particulars, prepare the cash flow statement for 5 months from Jan to May. हमें cash budget बनाना है 5 months का. So I'm preparing cash budget for 5 months. Now that's what I've drawn the columns for. Jan, Feb, March, April, May. आप यहाँ पे टाइटल पे लिखेंगे कैश बजट फॉर 5 months फ्रॉम Jan to May 2012. प्लीज़ टाइटल लिखना मत भूलना.
आई एम नॉट राइटिंग इट बिकॉज मेरा स्पेस शायद छोटा पड़ जाए हमारे कैलकुलेशंस के लिए. करेक्ट. नेक्स्ट, with other particulars, prepare the cash flow statement for 5 months from Jan to May 2012. Sales November 2011, December 2011, Jan 2012, Feb, March, April, सब months का sales दिया है. Sales 20% is on cash and 80% is on credit, payable in the third month. Jan sales in March. Variable expenses are 5% of the turnover, time lag is half a month. Commission 5% on credit sales, payable in third month. Purchase 60% of sales of the month, payment third month. Rent and other expenses 3,000 paid every month. Other payments, fixed assets purchase March 50,000, taxes in April 20,000 and opening cash balance 25,000. Now what we need to do is, हम जब प्रॉब्लम रीड कर रहे हो ना तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारे इनफ्लोज क्या और हमारे आउटफ्लोज क्या है. फर्स्ट थिंग, दे सेड सेल्स 20% इज कैश, 80% इज क्रेडिट. सो 20% इज कैश. इनफ्लो में कैश सेल्स बराबर है एंड 80% इज क्रेडिट. सो वी कैन हैव समथिंग दैट इज नोन एज रिसीट फ्रॉम डेटर्स. We can have cash sales and we can have what? Receipt from debtors, two things. Continuation. Variable expenses are 5%. Variable expenses will be outflow. So outflow में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ variable expenses. Next, commission is 5% on the credit sale, so we'll have commission outflow. Then I have got something that is purchase, rent. सो आउटफ्लो में हम लोग लिख रहे हैं परचेज, आउटफ्लो में ही हम लोग लिख रहे हैं रेंट. सो वी हैव परचेज एज आउटफ्लो, रेंट एज आउटफ्लो. अदर पेमेंट्स फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं और टैक्सेस भी पे कर रहे हैं. सो वी आर परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट्स. आउटफ्लो में फिक्स्ड एसेट्स, आउटफ्लो में टैक्सेस. सो 1 2 3 4 5 6 आउटफ्लोज टोटल. सी लास्ट वन, क्लोजिंग बैलेंस. सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग करनी है ऑलवेज एवरी क्वेश्चन पे. एक स्ट्रक्चर रेडी करना है और स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट कॉलम डिटेल्स एंड मंथली कॉलम्स, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई. एकदम क्लियर? टू गुड. ए फॉर इनफ्लोज, सॉरी ओपनिंग बैलेंस. बी फॉर इनफ्लोज, total of B, total of A plus B. C is outflows, total of C, and D is closing balance, that is A plus B minus C. क्लियर? चलिए, नाउ हाउ टू फॉर्मेट इट. आप बीच में लिखेंगे नहीं, प्लीज देखिए आप मेरे साथ. 1, ओपनिंग कैश बैलेंस 25,000. ओपनिंग बैलेंस 25,000. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर सीइंग हियर इज सेल्स. तो सेल्स के बारे में क्या कहा उन्होंने? आई रीड द फर्स्ट लाइन. दे सेड सेल्स इज 20% कैश. अब जब हम यहाँ पे फॉर्मेट सॉल्व करते चलेंगे ना तो विल नॉट डू इट ऑन मंथली बेसिस. हम लोग लाइन बाय करेंगे. कैश सेल तो पूरे 5 महीने का कैश सेल कंप्लीट, परचेज तो पूरे 5 महीने का परचेज कंप्लीट, टेक एन आइटम कंप्लीटेड फॉर ऑल द मंथ्स. उसके बाद हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे. सो कैश सेल्स दे आर सेइंग इट्स 20%. तो जैन का सेल देखिए आप 80,000 और 80,000 का हमें 20% लेना है. So 80,000 into 20% will be 16,000 in the month of Jan. Feb 1 lakh 20,000. March 16,000. कैलकुलेशन कर सकते हो आप मेरे साथ. April 1 lakh 20% 20,000. May 90,000 का 20% 18,000. डन. इसके आगे की कहानी हमें चाहिए नहीं. तो हम लोग ने सारे कैश सेल्स ढूंढ लिए. एकदम क्लियर? नेक्स्ट वन, सेकंड क्या ढूंढना है हम लोगों को यहां पे? रिसीट फ्रॉम डेटर्स. So I am looking at receipt from debtors. Now they said cash sale is 20%, 80% is credit payable in third month. 80% credit payable in third month.
नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? 80% क्रेडिट एंड दैट टू पेएबल इन थर्ड मंथ का मतलब है, और ब्रैकेट में लिखा है जैन के सेल का पैसा हमें मार्च में मिलेगा। थर्ड मंथ, इनका काउंटिंग सोचिए आप, जैन का सेल मार्च, फेब मार्च, मतलब जैन सेल हुआ वो फर्स्ट मंथ, फेब सेकेंड मंथ, मार्च थर्ड मंथ। करेक्ट है? थोड़ी और सी कैलकुलेशन है। नॉर्मली अगर ये लोग अपने को ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते ना, तो हम थर्ड मंथ कैसे कैलकुलेट करते पता है आपको? जैन अगर सेल कर रहा है तो फर्स्ट मंथ फेब होना चाहिए, सेकेंड मंथ मार्च होना चाहिए एंड थर्ड मंथ अप्रैल होना चाहिए। दिस इज हाउ द कैलकुलेशंस हैव टू गो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलिंग इन जैन, तो फर्स्ट मंथ फेब पे कंप्लीट होगा, सेकेंड मंथ मार्च पे कंप्लीट होगा, थर्ड मंथ अप्रैल पे कंप्लीट होगा। करेक्ट है कि नहीं? बट इन लोग क्या कह रहे हैं, जैन का पैसा मार्च में आने वाला है। मतलब ये लोग कैसे काउंटिंग कर रहे हैं कि जैन फर्स्ट मंथ हो गया, जैन का सेल जैन फर्स्ट मंथ, फेब सेकेंड मंथ, मार्च थर्ड मंथ। दिस इज हाउ द कैलकुलेशंस आर गोइंग। हमें उनका सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं कहते तो मैं थर्ड मंथ को अप्रैल कंसिडर करके चलता, पर हम लोग बोल रहे हैं जैन का मार्च, मतलब उनकी काउंटिंग चल रही है, जो मंथ में जो हो रहा है वो फर्स्ट मंथ हो जाएगा, फेब विल बी सेकेंड मंथ एंड मार्च विल बी थर्ड मंथ। आर वी क्लियर? दिस इज हाउ वी शुड गो अहेड विद। सो जैन, फेब, मार्च कंटिन्यूएशन करें हम लोग, टू गुड। सो अगर जैन का पैसा मार्च में मिल रहा है तो मेरा कैश बजट तो जैन से चालू हो रहा है, मतलब मुझे तो ये भी जानना है कि जैन में कौन सा पैसा मिल रहा है। सो हाउ विल आई अंडरस्टैंड दैट नाउ? इफ जैन का पैसा मार्च में मिल रहा है तो फेब में किसका पैसा मिल रहा होगा? दिसंबर। जैन में किसका पैसा मिल रहा होगा? नवंबर। सो दिसंबर का पैसा मुझे मिलेगा फेब में, नवंबर का पैसा मिलेगा मुझे जैन में। तो मुझे नवंबर का सेल्स लेना है, नवंबर का सेल्स, इसीलिए उन्होंने पहले की इन्फॉर्मेशन दी है। ये लोग कैलकुलेशन जितना आगे लेके जाएंगे ना पीरियड, हमें कैलकुलेशन उतने पीछे से करनी पड़ेगी। जैन टू मार्च तो अपने को उतना पीछे जाना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो द मनी इन द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो नो द मनी इन द मंथ ऑफ जैन ऑल्सो। और ये प्योर कैश बजट है। यहाँ पे मुझे ये लेना देना नहीं है कि जैन में सेल कितना हो रहा है, मुझे ये दो कि जैन में पैसा कितना आ रहा है। आर वी क्लियर विद दैट? प्लीज नवंबर का सेल्स देखिए कितना है, 80,000 का 80%, 64। और पैसा कब आएगा? नवंबर का सेल है तो नवंबर फर्स्ट मंथ, दिसंबर सेकेंड मंथ, जैन थर्ड मंथ, तो पैसा आएगा जैन में। रिसीट फ्रॉम डेटर 64,000 in the month of Jan। कैलकुलेशन समझा? टू गुड। चलो दिसंबर 70,000, 70,000 का 80% निकालिए। कैलकुलेशन प्लीज। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, मार्च 80,000 है, उसका पैसा जैन, मतलब जैन का सेल 80,000 है, उसका 80%, 64 अगेन। फेब का सेल 1 लाख है, 1 लाख का 80% विल बी 80,000। मई का सेल, मतलब मार्च का सेल 80,000 है, उसका 80% है 64,000। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आपको? मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये कौन से महीने का पैसा एक्चुअली आ रहा है यहाँ पे? नवंबर का। ये कौन से पैसा आ रहा है? दिसंबर। ये कौन सा पैसा है? जैन। ये कौन सा पैसा है? फेब। ये कौन सा पैसा है? मार्च। मार्च का क्रेडिट सेल, मार्च फर्स्ट मंथ, अप्रैल सेकेंड मंथ, मई थर्ड मंथ। मार्च का क्रेडिट सेल का पैसा मई में आ रहा है। क्लियर जा रहा है? टू गुड। टोटल ऑफ बी 16 + 64 80, 76, 80, 1 lakh 82। वेरी गुड। एंड टोटल ऑफ A + B 25 + 80 1,05,000। सिर्फ इसी मंथ में कर सकता हूँ, आगे का टाइम तो हम बाद में करेंगे। चलो अब हम पेमेंट्स पे आ जाए। पेमेंट्स उल्टा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वेरिएबल एक्सपेंसेस लास्ट में उठाएंगे। टैक्सेस पढ़ो,
टैक्सेस का पेमेंट कभी कर रहे हैं हम लोग? आप क्वेश्चन पढ़ के बताइए टैक्सेस का पेमेंट कब हो रहा है? टैक्सेस अप्रैल 20,000, जैन फेब मार्च अप्रैल 20,000, एक ही बार पेमेंट हो रहा है अप्रैल में, सिंपल एकदम। नेक्स्ट वन, फिक्स्ड एसेट का परचेज हो रहा है मार्च में 50,000, सो फिक्स्ड एसेट जैन फेब मार्च में 50,000 के फिक्स एसेट्स खरीदने हैं, डैश। इज इट करेक्ट? रेंट, rent and other expenses 3,000 paid every month, 3,000 paid every month, 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000. Rent and other expenses are 3,000 and they are paid every month, simple. Next one, purchase. Purchase is 60% of sales of the month and payment is third month of purchase. Purchase is 60% of sales of the month. ये मंथ में जितना सेल हुआ उसका 60% परचेज है और पेमेंट थर्ड मंथ में करनी है। मतलब आप कैलकुलेशन सोचिए, फिर से एक बार सोचते हैं, यहाँ पे आइए। जैन का सेल उसका 60% परचेज और पेमेंट थर्ड मंथ, मतलब जैन फर्स्ट मंथ हो गया, फेब सेकेंड मंथ, मार्च थर्ड मंथ। इन शॉर्ट सेल्स का 60% निकालो और उसका पेमेंट करो मार्च में। जैन के सेल का 60%, पेमेंट मार्च में, करेक्ट? तो फेब में किसका पेमेंट हुआ? दिसंबर का परचेस। जैन में किसका पेमेंट हुआ? नवंबर का परचेस। और नवंबर का परचेस कितना था? 60% ऑफ द सेल्स ऑफ नवंबर। तो सेल्स ऑफ नवंबर, हाउ मच सेल्स ऑफ नवंबर? 80,000। तो 80,000 का 60% निकालिए, कैलकुलेशन प्लीज। 80,000 इंटू 60%, 48। बैक टू द स्टेटमेंट, परचेज पेमेंट इन द मंथ ऑफ जैन 48, पेमेंट जैन में हो रहा है। हम कैश बजट बना रहे हैं, हमें यही जानना है कि पैसा कब जा रहा है। ये परचेज जैन का नहीं है, ये परचेज है नवंबर का, पर पेमेंट कब हो रही है? जैन में। दैट्स कैश बजट, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट वन, परचेज के बाद दिसंबर 70,000 का 60%, बोलो 42। 80,000 जैन 60%, 80,000 60%, 48। वेरी गुड। उसके बाद 1 लाख का 60%, 60। एंड लास्ट वन 80,000 का 60%, अगेन 48। गाइज एक फर्स्ट मंथ की लिंक मिल जाए ना हमें, तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। सो फर्स्ट मंथ का कैलकुलेशन हमारे लिए की होता है। नेक्स्ट वन, वी गो फॉर कमीशन नाउ। कमीशन क्या बोला उन्होंने? कमीशन इज 5% ऑफ क्रेडिट सेल्स पेएबल इन थर्ड मंथ। 5% ऑफ क्रेडिट सेल्स पेएबल इन थर्ड मंथ। अगेन द कैलकुलेशन प्लीज। और ये सिंपल वर्किंग नोट्स है, इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। आगे के क्वेश्चंस में जब भी इंपॉर्टेंट होगा तो हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे, बट ये सिंपल है और ऐसे ही सॉल्व होना चाहिए। थर्ड मंथ जैन का सेल 80% क्रेडिट सेल, उसका 5%। थर्ड मंथ जैन फर्स्ट मंथ, फेब सेकेंड मंथ, मार्च थर्ड मंथ। जैन फेब मार्च। नाउ दिस इज हाउ द कैलकुलेशन गोज। जैन का क्रेडिट सेल और उसका पेमेंट कमीशन हम मार्च में पे करेंगे। जैन का पेमेंट मार्च में। आर वी क्लियर विद दैट वन? सो जैन का पेमेंट मार्च। अभी जैन का पेमेंट अगर मार्च में होगा तो फेब में किसका पेमेंट होगा? दिसंबर। परफेक्ट है। फिर जैन में किसका पेमेंट होगा? नवंबर। सो वी गो टू नवंबर अगेन। नवंबर का सेल्स कितना था? 80,000। उसका क्रेडिट सेल 80%, 80,000 का 80% निकालिए प्लीज। 64। उसका 5% कमीशन है,
तो 64,000 का 5%, 3,200 स्टेटमेंट में कमीशन 3,200, करेक्ट है कि नहीं? एंड गाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपका दिमाग मेरे साथ चल रहा है तो आई गेस क्रेडिट सेल का भी वही थर्ड मंथ चल रहा था ना, तो यही क्रेडिट सेल का पैसा है ना। नवंबर के क्रेडिट सेल 64,000 जैन में आया और यही क्रेडिट सेल पे अपने को 5% कमीशन मिलने वाला। इधर 64,000 का 5% निकाला, चलो 56,000 का 5%, 2,800। और एक बार चेक भी कर सकते हो आप मेरे साथ, दिसंबर का सेल 70,000, 70,000 का 80%, यही 56,000 आएगा। और वही 56,000 का 5%, 2,800। सही है ना एकदम? ओके, 64,000 5%, 3,200, 80,000 5%, 4,000, 64,000 5%, 3,200। गॉट दैट? पक्का? टू गुड। चलो अब जाते हैं हम वेरिएबल एक्सपेंसेस पे। वेरिएबल एक्सपेंसेस, what about variable expenses? They are saying variable expenses is 5% on the turnover and time lag is half a month. Variable expenses are 5% on the turnover and time lag is half a month. Please, variable expenses 5% of the turnover, time lag half a month. एकदम आराम से सोचना है हमें। पहले तो ये हाफ अ मंथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाफ मंथ, टाइम लैग हाफ मंथ का मतलब होता है, टाइम लैग हाफ मंथ का मतलब कि हाफ अ मंथ का मतलब पेमेंट 15 दिन के बाद होगी। 1 मंथ इज वेरी क्लियर, 1 मंथ का मतलब जैन में जो काम करेंगे उसका पेमेंट हमें फेब में करना है, दैट इज 1 मंथ टाइम लैग। 15 डे टाइम लैग मतलब जैन 15 डेज, उसका पेमेंट 16th को, अगेन 16 से लेके अगेन हाफ अ मंथ, उसका पेमेंट फेब 1 को। मतलब जैन में हम लोग जो 1 से 15 काम करेंगे उसका पेमेंट होगा 16th को, और जैन में हम लोग जो 16 से 31 का काम करेंगे उसका पेमेंट होगा फेब 1 को। 15 दिन का टाइम लैग, 15 दिन काम करो फिर सैलरी। तो जैन का पेमेंट कब हुआ? जैन के एक्सपेंसेस का पेमेंट कब हुआ? 16th, मतलब जैन में, और बाकी आधा पेमेंट कब हुआ? फेब। तो जैन के एक्सपेंसेस का पेमेंट आधा जैन में हुआ और आधा फेब में हुआ। एंड इन एवरी मंथ 2 बार पेमेंट जाएंगे। फर्स्ट, अगर मैं बोलूं जैन में कौन सा पेमेंट किया, मैं एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जैन में कौन सा पेमेंट किया। कहना से आपने जैन में 2 बार पेमेंट किया होगा, एक जैन 1 को किया होगा और दूसरा जैन 16 को किया होगा। जैन 1 को किसका पेमेंट किया होगा आपने? दिसंबर का आधा। और जैन 16 को किसका पेमेंट किया होगा? जैन का आधा। दैट्स हाउ इट हैपेंस। जैन का पेमेंट आधा जैन आधा फेब। तो जैन में जो पेमेंट किया आधा दिसंबर आधा जैन, और हमें पेमेंट से कंसर्न है, हमें एक्सपेंसेस से कंसर्न नहीं है। आप देखिए मैं वर्किंग नोट बनाता हूं एक, हैव अ लुक एट दिस कैलकुलेशंस प्लीज। फिर से स्टेटमेंट भी पढ़िए एक बार। व्हाट आर दे सेइंग? वेरिएबल एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ टर्नओवर एंड टाइम लैग इज हाफ अ मंथ। हाफ मंथ ना, जितना आगे जाएंगे मैंने कहा था उतना पीछे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई विल स्टार्ट माय कैलकुलेशन फ्रॉम दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। एक्सपेंसेस, मैं पेमेंट नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं एक्सपेंसेस ढूंढ रहा हूं। 5% ऑफ द टर्नओवर, 5% ऑफ द टर्नओवर। दिसंबर का टर्नओवर 70,000, उसका 5%, 70,000 का 5%, इज इट 3,500? जैन 80,000 का 5%, 4। फेब 1 लाख का 5%, 5। मार्च 80,000 का 5%, 4। अप्रैल 1 लाख का 5%, 5। मार्च 80,000 का 5%, सॉरी मई 90,000 का 5%, 4,500।
ये एक्सपेंसेस मिले और बॉस हम कैश बजट बना रहे हैं, हमें एक्सपेंसेस नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम इन एक्सपेंस का पेमेंट कब करेंगे. सो पेमेंट हाफ टोटल. एकदम आराम से सोचना. मैं बोल रहा हूं दिसंबर के एक्सपेंसेस थे 3,500, तो दिसंबर के एक्सपेंसेस 3,500 और टाइम लैग 15 डेज था. तो दिसंबर 1 से 15 में हमने जो काम किया उसका पेमेंट 16 को मिल जाएगा. 3,500 का हाफ 1750. और दिसंबर के आधे सैलरी मतलब आधी सैलरी हमें नेक्स्ट 15 डे के बाद मिलेगी. मतलब उसकी सैलरी हमें दिसंबर में नहीं मिलेगी, उसकी सैलरी हमें जैन में मिलेगी 1750. सिर्फ समझ रहे आपको? पक्का? मतलब दिसंबर का पेमेंट आधा दिसंबर आधा जैन, जैन का पेमेंट आधा जैन आधा फेब. सो पेमेंट 2000 पेमेंट 2500 2500 मार्च 2000 अप्रैल 2500 मई 2250 और बाकी का 2250 अगले महीने में होएगा. उससे तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है बॉस. क्लियर ना? चलो टोटल करो. दिसंबर का पेमेंट का टोटल नहीं चाहिए मेरे को, जैन से टोटल करो. 2 + 1750 इज 3750. 4500 4750. हम सिर्फ पेमेंट की टोटल कर रहे हैं, एक्सपेंस का टोटल में मत ले लेना मिस्टेक से. हाँ, हमें सिर्फ टोटल ऑफ पेमेंट्स चाहिए. तो एक्चुअली जैन का खर्चा 4,000 है पर हमने पेमेंट 3750 किया. फेब का खर्चा 5,000 है पर हमें तो पेमेंट ढूंढना है. पक्का? टू गुड. और ना मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं, बट दिस शॉर्टकट will be applicable only if time lag is half a month. Now time lag can be 1/4 of the month also. So shortcut कहाँ अप्लाई करेंगे? अगर टाइम लैग हाफ अ मंथ हो तो. व्हाट्स अ टाइम लैग? जैन का पेमेंट ढूंढना हो ना, तो दिसंबर और जैन का एक्सपेंसेस लो, डिवाइड बाई 2 कर दो. दिसंबर और जैन का एक्सपेंसेस 3,000 + 4,000 डिवाइडेड बाई 2 इज 3750. चेक कर लो. राइट है ना? फेब का पेमेंट ढूंढना है तो क्या करोगे? जैन और फेब का टोटल डिवाइड बाई 2. 4,000 + 5,000 डिवाइड बाई 2. मार्च का पेमेंट ढूंढना है तो क्या करोगे? फेब मार्च डिवाइड बाई 2. अप्रैल का पेमेंट ढूंढना है तो क्या करोगे? मार्च अप्रैल डिवाइड बाई 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? टू गुड. कैलकुलेशंस जा रहे बरोबर से? पक्का? चलो नाउ लुक एट द कैलकुलेशन स्लो एंड स्टेडी. जैन का पेमेंट, फेब का पेमेंट, मार्च का पेमेंट, अप्रैल का पेमेंट, मई का पेमेंट स्टेटमेंट. पर ये शॉर्टकट कभी अप्लाई करोगे? जब भी हाफ मंथ हो. नाउ सपोज इफ आई टेल यू इट्स 1/4 मंथ, मतलब क्या होगा मालूम है? 1 से 7 का काम किया 8 को, 8 से 15 का काम किया 16 को, 15 से 23 का काम किया 24 को, 24 से 31 या 24 से 30 का काम किया 1 को. मतलब एक महीने में 3 बार पेमेंट होगा और वो लास्ट पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा. मतलब जैन में अगर मैं बोलूं कि आपको पेमेंट किया है मैंने 4 बार, तो जैन 1 को जो मैंने पेमेंट किया होगा, जैन 1 को, वो पेमेंट दिसंबर का होगा और 3 पेमेंट जैन के होंगे. आर वी क्लियर विद दैट वन? टू गुड. मतलब हमें वहां पे डिवीजन कैसे करना पड़ेगा पता है? 3/4 1/4. 3/4 ऑफ सेम मंथ, 1/4 ऑफ लास्ट मंथ. हम देखेंगे क्वेश्चन में, ज्यादा कंफ्यूज मत होना ये देख के. अभी पहले ये टोटल ले लेता हूं एंड आई ब्रिंग इट बैक टू द स्टेटमेंट. प्लीज कम बैक टू द स्टेटमेंट. फर्स्ट, वेरिएबल एक्सपेंसेस जैन 3750, फेब 4,500, 4,500, 4,500 ये ना एक और, एंड द लास्ट वन इज 4,750. चलो अब सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे हम लोग. फर्स्ट टोटल 3,750, 3,248,000 प्लस 3,000,
48 and 3, 51. 51 and 3, 54. 55, 56, 57, 57,950. करेक्ट है? और मंथली कैलकुलेशन अभी साइकिल चलेगी, देखो तुम 1,05,000 था, 1,05,000 माइनस 97,950. एक काम करो, पहले तुम सिर्फ एक्सपेंसेस के टोटल करके दे दो. सेकेंड 42, 3, 2,800, 4,500, 52,300. Next 48, 3, 50, 3,200, 4,500. Is it 1,08,700? चलो next month. Very good. And the last month. Too good. चलो अब कैलकुलेशन साथ में करना एकदम आराम से. 1,05,000 दिख रहा है तुम्हें? माइनस 57,950. बोलो. 47,050 इस मंथ का क्लोजिंग हुआ, वो ये मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बन जाएगा. सो यहां से क्लोजिंग 47,050 बिकम्स द ओपनिंग. एकदम करेक्ट. नाउ 47,050 प्लस 76, 123,050. 123,050 minus 52,300, 77,50 on the top. 70,750 plus 80, 1,50,750 minus 1,08,700. Very good. 42,050 on the top of April. 42,050 plus 1 lakh. 142,050 minus 91,500. 50,550 on the top. 50,550 plus 82. 132,550 minus 58,950. 73,600 is your answer for the cash budget. Clear? प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है और इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या आएंगे वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. बट दिस इज हाउ द कैश बजट इज प्रिपेयर्ड गाइस. टू गुड. चकास. चलो आप पहले कॉपी करना चालू कर दो प्लीज. So are we done with question number 1? Now we go to question number 2. From the following information given below, prepare the cash budget of Messrs. Ram Limited for the first half of the year of 2012
assuming that cost will remain unchanged. Okay, assuming that cost will remain unchanged मतलब देखेंगे आगे. और फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 2012 पे काम करना है, मतलब जैन से लेके जून तक 6 मंथ्स का कैश बजट. सेल्स आर बोथ ऑन कैश एंड क्रेडिट, लेटर बीन 1/3 ऑफ द फॉर्मर. कैलकुलेशंस बाद में करेंगे, बट हम सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो डिस्कस कर रहे हैं पहले एक फॉर्मेट बनाने के लिए. सो विल हैव कैश सेल्स, विल हैव रिसीट फ्रॉम डेटर्स, both will be inflows. Realization from debtor is 25% in the month of sale, 60% in the month following that, and balance in the month after that. Class calculations. Company adopts a uniform pricing policy of selling price being 25% over the cost. Selling price is 25% above the cost, मतलब purchase होगा, purchase will be outflow. Budgeted sales of each month are purchased and paid for in the preceding month. The company has outstanding debentures of 2 lakh on 1st of Jan, which carries an interest at the rate of 15% per annum payable on the last date of each quarter on the calendar year basis. 20% of debentures are due for redemption on 30th June. Interest on debenture and redemption of debenture, dono outflow. The company has to pay tax outflow, anticipated office cost outflow. The minimum cash balance is 10,000. The opening cash balance is 10,000, and that is also a minimum cash balance to be maintained. Deficits to be met by borrowers on the multiples of 10,000 on which interest on monthly basis has to be paid on the first date of the subsequent month. मतलब opening cash 10 है और ये 10,000 maintain करना है, और अगर यहाँ पे कोई शॉर्टेज आएगा तो हम बोरो करेंगे, उस मंथ की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मंथ के फर्स्ट डे पे बोरो करेंगे और उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 12% फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ अ मंथ. रेंट आउटफ्लो एंड सेल्स का इन्फॉर्मेशन दिया है. फॉर्मेटिंग देखिए आप पहले. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द फॉर्मेटिंग. क्वेश्चन नंबर 2, कितने मंथ्स का कैश बजट बनाना है हम लोग को? 6 मंथ्स. डिटेल्स Jan, Feb, March, April, May, June. Jan, Feb, March, April, May, June. 6 मंथ्स का कैश बजट बना रहे हैं हम लोग. टाइटल पे लिखेंगे कैश बजट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ 2012. Jan, Feb, March, April, May, June. Correct? First one, first things first. 1, opening balance, that is A. B, inflows. Opening balance I guess 10,000 दिया उन्होंने, बाकी सारे कैलकुलेशंस बाद में करूँगा, आप टेंशन मत लेना. B, inflows. So we'll have cash sales and we will have receipt from debtors. Receipt from debtors. Total of, और कोई इनफ्लोज नहीं है गाइस. B. Next, A plus B. करेक्ट है? टू गुड. नेक्स्ट वन, C, outflows. And what do we have in outflows? First one, purchase. Next, debenture interest. Redemption of debenture. Tax. Office cost. Rent. रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर हम लोन लेंगे तो आप ये कैलकुलेशन देखेंगे मेरे साथ, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में.
इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी टोटल ऑफ सी, दैट इज आउटफ्लोज। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम, डी क्लोजिंग बैलेंस ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी, एड बोरोइंग्स। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग अहेड इन दिस क्वेश्चन, ये नया फंडा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन में। सो वी विल गेट समथिंग दैट इज नोन एज एडजस्टेड क्लोजिंग, adjusted closing. Are we clear with that one? Too good. First concept क्या है कि 10,000 है, मिनिमम बैलेंस रखना ही है। अगर ये बैलेंस 10,000 से कम आता है तो वी हैव टू बोरो, एंड द क्वेश्चन सेड वी हैव टू बोरो इन द मल्टीपल्स ऑफ 10,000। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बैलेंस यहाँ पे 9 आ जाए, मिनिमम 10 था, तो मुझे बोरो करना है। पर जब आप बैंक से बोरो करने जाएंगे तो आपका बोरोइंग मल्टीपल्स ऑफ 10,000 में ही होगा। दैट मीन्स आई कैन नॉट बोरो 1,000, आई कैन नॉट बोरो 100 रुपी, आई हैव टू बोरो 10,000 रुपी। तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग 10 से कम आएगा तो मैं बोरो करूंगा, इसीलिए मैं सी के डी के आगे जा रहा हूं। समझ रहे हैं आप? अगर ये 10 से कम आया तो बोरोइंग करूंगा और उसको 10 से ज़्यादा कर दूंगा, और ये एडजस्टेड क्लोजिंग हो जाएगा जो ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ होगा। अब हम अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे ऑलवेज कि बोरोइंग्स ना, दे आर नॉट गुड फॉर द बिजनेस, फ्री नहीं आते ना, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं हम लोगों को। तो अगर हमें उसे इंटरेस्ट पे करना है उस बोरोइंग पे, सो व्हाट विल हैपन इज दैट मनी विल गो आउट, सो आउटफ्लो होगा। नाउ आउटफ्लो क्या होगा आपका? रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब इमीडिएटली अगर हम जैन में बोरो कर रहे हैं तो हम उसे फेब में रीपे कर देंगे। अगर फेब में फिर से बैलेंस कम आएगा तो फेब में बोरो कर लेंगे, बट जैन का पेमेंट रीपे कर देंगे। दिस इज हाउ द सिस्टम हैज टू वर्क, बिकॉज अदरवाइज इंटरेस्ट तो क्यूमुलेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बहुत कैश बैलेंस है तो बोरिंग अपने पास रख के क्या फायदा है? तो इसीलिए मैंने आउटफ्लो में 2 और चीजें ऐड की, रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट समझा आपको? टू गुड। अब कैलकुलेशंस देखिए आराम से। फर्स्ट वन, sales are both on credit as well as cash, the later being 1/3 of the former. What do you mean by later being 1/3 of the former? Sales are both on credit and cash and later being 1/3 on the former. मतलब cash sales are 1/3 of credit sales. Cash sales are 1/3 of credit sales. Last information, IJK. Sales forecast for the different months are given to you. They have given you sales of the month. They have not given you credit sale. They are saying cash is 1/3 of credit. पर credit कितना? और हमें तो टोटल सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया गया, तो हमें टोटल सेल्स में से कैश और क्रेडिट निकालना है। और इन्होंने जो रिलेशनशिप बनाया है, they are saying cash is 1/3 of credit, but I want to know cash is how much of total. See the calculation. Working note number 1. Cash is 1/3 of credit. Now we can do it by X and Y format, but मैं और simple कर देता हूँ. If cash is 1/3 of credit, let the credit be 3. तो cash 3 का 1/3 1, तो I guess total will be 4. वो X Y इक्वेशन बनाना अवॉइड करो FM में, थोड़ा सिंपल रहेगा। कैश इज 1/7 ऑफ टोटल बोला है, तो भाई कैश इज 1, क्रेडिट इज 7, जितना बोला उतना अज्यूम करो, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। कैश 1/3 ऑफ क्रेडिट था, तो मैंने क्रेडिट को कितना अज्यूम कर लिया 3, तो कैश कितना हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया 4। दैट मीन्स माई कैश इज 1/4 ऑफ टोटल एंड क्रेडिट इज 3/4 ऑफ टोटल। सिंपल ना? कैश इज 1/4 ऑफ द टोटल, टोटल का 1/4 कैश एंड क्रेडिट कितना 3/4। तो अब मैं लाइन बाय लाइन कैलकुलेशन करूंगा, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता हूं मैं, पॉइंट बाय पॉइंट जाता हूं। कैश मिल गया ना 1/4 ऑफ द टोटल,
चलो फॉर्मेटिंग पे आ जाओ एक बार। हमें जैन का कैश सेल्स ढूंढना है। कैश इज 1/4, 1/4 इज कैन आई से नथिंग बट 25%। जैन का सेल 2 लाख, 2 लाख का 1/4 निकालिए आप। 2 लाख 1/4, सॉरी यस 2 लाख नहीं, जैन का सेल है 2,20,000, 2,20,000 का 1/4 निकालिए। कितना? वेरी गुड, 55,000। फेब 1,40,000 1/4, $35। चलो 1,60,000 1/4, 40, 1,50,000 1/4, 37,500, 2 lakh 1/4, June 1,80,000 1/4, yes 45,000। क्या ढूंढ लिया हम लोग ने? सेल्स। आर वी क्लियर विद दैट वन? टू गुड। अच्छा नेक्स्ट कैश सेल्स मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है? रिसीट फ्रॉम डेटर। क्रेडिट सेल कितना है? 3/4। And see the class calculation they are telling you. Realization from debtor is 25% in the month of sale, 60% in the month following that, and balance in a month after that. Realization from the debtor is 25% in the month of sale, 60% in the month following that, and balance in the month after that. डेटर से रियलाइजेशन 25% उसी महीने में आ रहा है, 60% नेक्स्ट मंथ में आ रहा है और उसका बैलेंस नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। कैलकुलेशन देखिए आप मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूं मैं, डेटर का कैलकुलेशन। अभी लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे कहा था आपको कि ये लोग जितना आगे जाएंगे हमें उतनी पीछे से कैलकुलेशन करनी है। 25% उसी महीने में आ रहा है, 60% नेक्स्ट 1 मंथ आगे, बैलेंस नेक्स्ट 2 मंथ आगे। तो अगर ये लोग 2 मंथ आगे चल रहे ना तो कैलकुलेशन 2 मंथ पीछे से करो। मतलब जैन, दिसंबर, नवंबर। आई विल स्टार्ट माय कैलकुलेशंस फ्रॉम नवंबर। हैव अ लुक एट इट। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून मंथ्स। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले क्रेडिट सेल्स। हम पहले क्रेडिट सेल्स ढूंढेंगे हर एक मंथ के। कितने हैं क्रेडिट सेल्स? 3/4, 75%। नवंबर का क्रेडिट सेल 1,80,000 का 75%। कैलकुलेट। 80, 1,80,000 का 75%, 135 नवंबर का सेल हुआ। दिसंबर 135 नवंबर का सेल मतलब क्रेडिट सेल हुआ। December 2,75%, 1,50,000, 2 लाख का 75%, बराबर है। 2,20,000 का 75%, 2,20,000, 165, 140 का 75%, 1,40,000 75%, 105, 160 का 75%, 120, अप्रैल रुको, 150 का 75%, 112,500, अप्रैल। मई का है 2 लाख का 75%, 150। हाँ, जून 1,80,000 का 75%, 135। ये मैंने क्रेडिट सेल्स निकाला। अभी तो कैलकुलेशन समझ रहे हैं आपको? क्रेडिट सेल्स निकाला हम लोगों ने। अब हम क्या बोल रहे हैं? एक लाइन ब्लैंक रखेंगे इसके बीच में। प्रेजेंटेशन एकदम क्लियर जानी चाहिए। 25% सेम मंथ में आ रहा है, 65% नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, 25, 65 टोटल हो गया। नहीं, 25 और आई गेस 60% या 65%, 60%।
85% हो गया, तो बैलेंस बचा 15% नेक्स्ट मंथ में आएगा। 25 सेम मंथ, 60 नेक्स्ट मंथ, 15 नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, और यहाँ पे मुझे टोटल रिसीट्स मिलेगा। दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग फॉर। कैलकुलेशन समझ रहे हैं आप सबको? पक्का? चलो अभी आराम से आप मेरे साथ कैलकुलेशन करना और देखना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। 1,35,000 का 25% सेम मंथ में आएगा, पर नवंबर का पैसा अपने को थोड़ी जानना है, अपने को कौन सा पैसा जानना है? जैन का। तो इसका 25% सेम मंथ में आएगा, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 60% नेक्स्ट मंथ में आएगा, 60% नेक्स्ट मंथ में आएगा दिसंबर में, वो भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। 15% नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में आएगा, 15% दिसंबर जैन में पैसा आएगा। बॉस चाहिए कि नहीं आपको? यहां पे नहीं, पर यहां पे तो पैसा चाहिए ना हम लोगों को। सो बॉस 1,35,000 का 15% निकालो, 20,250। कब मिलेगा 20,250? इन द मंथ ऑफ जैन। वो चाहिए हम लोगों को। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? स्टेप वाइज कैलकुलेशन, ऐसे स्टेप चलेंगे, और पहली लिंक मिल गई तो सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। अभी सेकेंड देखिए आप, दिसंबर का 25%, दिसंबर का 25%, पर वो दिसंबर का 25% तो दिसंबर में ही आएगा, हमको नहीं चाहिए। 1,50,000 दिसंबर का 60% जैन में आएगा, सो 1,50,000 का 60% 90,000 जैन में आएगा, वो चाहिए। और 1,50,000 का 15% फेब में आएगा, 22,500। टू गुड। अभी अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशंस गाइस? पक्का ना? चलिए आगे। अब कैलकुलेशन मेरे साथ कीजिए, और हर टाइम परसेंट नहीं, मैं बोलूंगा वैसे कैलकुलेशन करेंगे। 1,65,000 इंटू 0.25 इक्वल टू 41,250। कुछ प्रेस मत करना कैलसी में। 41,250 जैन में आएगा, 0.60। यस, 99,000 कब आएगा? फेब में 0.15। 24,250 पैसा कब आएगा? मार्च। 24,750 पैसा कब आएगा? मार्च में। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ ना? सी 1,65,000 का ही 25% निकालना है, 60% निकालना है, 15% निकालना है, तो कैलकुलेशन डायरेक्ट। अब यहाँ पे कर एक बार, चल 1,05,000, हाँ जीरो कर दे, 1,05,000 इंटू 0.25, वेरी गुड। 0.60 जकास, 0.15 टू गुड। चलो कैलकुलेशन फटाफट अभी। 1,20,000 इंटू 0.25 30.6 30 आ रहा है। 1,20,000 इंटू 0.25 30, फिर 0.6 72 एंड 0.15 18 जकास। चलो 1,12,500 इंटू 0.25 28,125 0.6 0.15 जकास। चलो 1,50,000 इंटू 0.25 0.6 90। अभी इसका पैसा आगे जुलाई में आएगा, पर हमें जुलाई से कोई लेना देना ही नहीं है, हम क्यों जुलाई की कैलकुलेशन करें? तो फॉरगेट अबाउट थर्ड मनी कमिंग इन। चलो फाइनल 1,35,000 इंटू 0.25 33,750, बस दैट्स इट। हमें सिर्फ जून तक का पैसा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन समझा? 25% सेम मंथ, 60% नेक्स्ट मंथ, 15% नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। That's how the calculation goes. Now, total. Calci छोड़िए मत सर आप।
41,250 प्लस 90 प्लस 20,250. मैं लास्ट से कैलकुलेशन कर रहा हूँ. बोलो कितना आ रहा है? 1,51,500. चलो फेब का कैलकुलेशन कीजिए आप. एक मिनट रुक जाओ. 147. वेरी गुड. चलो 147,750. और अभी मार्च का करो कैलकुलेशन. वन वन सेवन कितना? पक्का एकदम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? जकास. चलो अब ये सारे लिख दूं मैं अपने टेबल में. कैलकुलेशन समझा आपको डेटस का? इनफैक्ट ना गाइस, डेटस का कैलकुलेशन ही सबसे टिपिकल होगा क्वेश्चन में. बाकी सब कैलकुलेशन ज़्यादा सिंपल होंगे. चलो टेबल पे आ जाओ. 1,51,500 जैन. 147 फेब. 117,750 मार्च. 115,875 अप्रैल. 123 मई and 1,40,625 जून. अभी क्लियर? टू गुड. टोटल ए प्लस बी का टोटल कर रहा हूँ. 151 प्लस 55 2,06,500. 47 57 67 77 82 182,750. 157,750. इसका टोटल करो. 173 185,625. 37,500 प्लस 1 लाख. हाँ 188,375. 2,06,500 प्लस 10,000 इज 2,16,500. सही जा रहे एकदम? पक्का? टू गुड. तो ये कैलकुलेशन कर ली हम लोग ने डेटस की. सबसे बड़ी कैलकुलेशन होती है. अब हम जा रहे हैं परचेज कैलकुलेट करने. बट ये लाइन बहुत बढ़िया है. द कंपनी अडॉप्ट्स a uniform pricing policy of selling price being 25% over cost. Selling price 25% over cost मतलब क्या हुआ? That selling price is 25% over cost. Cost 100 तो selling price उसका 25% ज़्यादा. तो उसका मतलब है कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ 1/4 on cost. If my profit is 1/4 on cost, can I say my COGS is 3/4 of the selling price? Sorry, profit is 1/4 on cost. That means can I say my profit is 1/5 on selling price? If it is 1/5 on selling price, the profit of the selling price, can I say cost of goods sold is 4/5 of selling price? And if COGS is 4/5 of selling price, assuming opening and closing stock to remain constant, I can tell you that purchase is equal to 4/5 of sales. बहुत घूम रहा हूँ ना. Have a look here. Working note बनाता हूँ मैं इसका. Working note number 3. They said, read करते statement. Statement कह रहा है हम लोगों को कि the company adopts a uniform pricing policy of selling price being 25% above cost. Selling price is 25% plus the cost. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज जीपी कितना हुआ. प्रॉफिट हटा के मैं यहाँ पे एग्जैक्टली वो वर्ड लिख रहा हूँ कि जीपी कितना हुआ, 1/4 ऑन कॉस्ट. और हमने बहुत सारे चैप्टर्स में अकाउंट्स में भी सीखा होगा, इफ इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट इट इज 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस. व्हाट इज 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस? और मैं सेल्स प्राइस पे क्यों जा रहा हूं? बिकॉज हमारे पास सेल्स ही है इंफॉर्मेशन में. हमारे पास परचेज का तो इंफॉर्मेशन नहीं है, परचेज ढूंढना है.
तो हमारे सारे इंफॉर्मेशन सेल्स पे बेस्ड होने चाहिए. Profit 1/4 on cost is equal to 1/5 on selling price. Profit is 1/5 on selling price. Profit is 1/5 on selling price. That is COGS is 4/5 on selling price. Profit 1/5 है. 1/5 का मतलब क्या? 5 में से एक प्रॉफिट है. तो कॉस्ट कितना हुआ? 4. So COGS is 4/5 of selling price. Now if I'm not wrong, COGS is equal to opening plus purchase minus closing. तो मैं आपको बोल रहा हूं कि opening and closing दोनों सेम हो जाए. कांस्टेंट अज्यूम कर लूं. Assuming opening is equal to closing. Assuming opening is equal to closing. Can I say that COGS will be exactly equal to purchase will be exactly equal to 4/5 on sales? Did you understand this? So purchase is equal to COGS is equal to 4/5 on sale. Sales का 4/5 purchase है. Got this? Now नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है उन्होंने? अभी तो हमने सिर्फ परचेज मिला है. हमें परचेज जाके मंथ्स में नहीं लिखना है. हमें तो देखना है पेमेंट कब कर रहे हैं हम. सो दे सेड इन द स्टेटमेंट देयर दैट बजटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ आर परचेज एंड पेड फॉर इन द प्रीसीडिंग मंथ. एकदम आराम से. बजटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ आर परचेज्ड एंड पेड फॉर इन द प्रीसीडिंग मंथ. A purchase and paid for in the preceding month. जैन का जो सेल है उसका परचेज और उसका पेमेंट दोनों प्रीसीडिंग मंथ में होगा. प्रीसीडिंग मंथ मतलब कौन सा? दिसंबर. तो जैन का सेल, परचेज दिसंबर, पेमेंट भी दिसंबर. जैन का सेल, परचेज 4/5 इन दिसंबर, 4/5 पर, और पेमेंट दिसंबर. हमें दिसंबर की पेमेंट कार्ड नहीं ढूंढनी है, हमें तो जैन की पेमेंट ढूंढनी है. तो जैन में कौन से महीने का परचेज करोगे? फेब का. फेब का सेल, उसका 4/5 हम परचेज करते हैं जैन में. सो फेब का सेल लो आप 1,40,000. 1,40,000 का 4/5, उसका पेमेंट कब करोगे? जैन में. सो जैन में जाके परचेज की पेमेंट हम लोग दिखा रहे हैं 1,12,000. कैलकुलेशन समझा कैसे आ रहा है? टू गुड. नेक्स्ट वन, मार्च. 1,60,000 का 4/5 निकालो. 60. 1,28,000. वेरी गुड. 1,50,000 का 4/5. 1,20,000. टू गुड. 2,00,000 का 4/5. 1,60,000. नेक्स्ट वन, मई. उसका मतलब जून. 1,80,000 का 4/5. 1,44,000. 1,44,000. उसके बाद जुलाई. 1,20,000 का 4/5. 96,000 कभी? जून में. जुलाई का सेल है, उसका परचेज 96,000 है, जो हम जून में करेंगे, पेमेंट भी जून में करेंगे. आर वी करेक्ट? टू गुड. चलो बैक. अभी आते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट पे. Adjustment number E. The company had outstanding debentures of 2,00,000 on 1st of December, which carries an interest of 15% payable per annum. 15% per annum payable on the last day of each quarter on calendar basis. 2,00,000 के डिबेंचर्स है, 15% इंटरेस्ट है, पर इंटरेस्ट पे कब करना है? लास्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस. लास्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर 3 months, उसके लास्ट डेट पे जैन, फेब, मार्च 31 को पेमेंट, अप्रैल, मई, जून 30 को पेमेंट. डिबेंचर 2,00,000, 15% उसका इंटरेस्ट निकालो. 2,00,000 का 15%, बट 30,000 तो साल का इंटरेस्ट हुआ ना. अपने को इंटरेस्ट 3 महीने का पे करना है, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12.
into 3 divided by 12. Answer comes to 7,500. कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत है वर्किंग नोट में? एकदम सिंपल है यार. 2 लाख का 15%, 3 महीने का इंटरेस्ट. और मैं भी पागल हूं, जैन में लिख रहा हूं. जैन में पेमेंट नहीं करनी, इसकी पेमेंट करनी है मार्च में, पेमेंट करनी है जून में. कैलकुलेशन समझ रहा है आपको? पक्का? टू गुड. ओके. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वही स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा है 20% of debentures are due for redemption on 30th June 2006. Sorry, not 2006, it is 2012. 20% of debentures are due for redemption on 30th June 2012. 20% of the debenture, 2 लाख का 20%, 40,000 का डिबेंचर्स हम लोग रिडीम कर रहे हैं जून में. 40,000. सही है? थोड़ी और मजा आती अगर रिडम्पशन ना जून में नहीं मार्च में होता. तो उनको बोलना चाहिए था रिडम्पशन मार्च में हो रहा है. तो मजे क्या आती मालूम है आपको? ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बदल जाता ना. ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो हम लोग ने 15% 2 लाख पे किया है, कहने से उसमें से अगर 40,000 रिडीम हो जाए तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 1,60,000 पे हो जाए. बहुत मजा आती. चलो नेक्स्ट टाइम मजे कर लेंगे. टैक्स का पेमेंट देखते हैं. टैक्स adjustment number F. The company has to pay the last installment of advance tax for the assessment year 2012 and 13 amounting to 54,000. Assessment year 12-13 मतलब actual year 11-12. 11-12 का last installment of advance tax कब भरना पड़ेगा? मार्च 12 को. So मार्च 12 में हम 54,000 का advance tax भरेंगे. 54,000. Done. Office cost for the 6 months period are exactly amounts दे दिया, छाप दो. चलो जैन का 25,000, फेब 20,000, मार्च 40,000, अप्रैल 35,000, मई 30,000, जून 45,000. This is office cost that we are paying. Correct? Too good. Continuation of that. Rent payable is 2,000 per month. एक लाइन स्किप किया. H की जगह पे I लिया मैंने पहले. Rent payable is 2,000 per month. 2,000 per month. Every month भाई rent pay कर दो. एकदम करेक्ट. चलो अब मजे आएगी थोड़ी कैलकुलेशंस करने में हमें, बिकॉज हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन और लोन. कॉन्सेप्ट मत भूलिए, मिनिमम बैलेंस 10 रखना है. 10 के नीचे गया तो लोन लेंगे. लोन 12% इंटरेस्ट पे आएगी और लोन मल्टीपल्स ऑफ 10,000 पे आएगा. मीन्स यू कैन नॉट बोरो लेस देन 10,000. फर्स्ट मंथ में तो हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. सो हमने यहाँ पे रीपेमेंट पे भी डैश कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी डैश कर दिया. कैलकुलेशन आप देखेंगे मेरे साथ. फर्स्ट ईयर तो हमारे पास पैसा है 10,000, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया. चलो आप टोटल कीजिए अभी मेरे साथ. 1,12,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000, 1,39,000 को आप माइनस कर दो 2,16,500 से. हमारे पास 77,500 है. हमारे पास 77,500 है. मिनिमम 10 होना चाहिए था. कोई लोन लेने की जरूरत तो नो लोन. तो एडजस्टेड क्लोजिंग 77,500 और यही 77,500 हमारा ओपनिंग बन जाएगा. 77,500 सही जा रहा है. अच्छा 77,500 प्लस 1,82,750 प्लस 1,82,750 2,60,250 आउटफ्लो का टोटल. यहाँ पे कोई लोन नहीं, कोई रीपेमेंट नहीं. 128 प्लस 2 इज 130 प्लस 20 इज 150. चलो 2,60,250 माइनस 1,50,000 कीजिए आप. 10,250. एक मिनट रुकिए.
मैं भी आपके साथ थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ, कितना बोला आपने सर? 1,10,000। मिनिमम कितना चाहिए था? कोई लोन? तो 1,10,250 एडजस्टेड क्लोजिंग, 1,10,250 अपना ओपनिंग भी हो गया। उसका मतलब हम लोग मार्च में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई रीपेमेंट नहीं करेंगे, सही ना? चलो 1,10,250 प्लस 1,57,750 इज इट 2,68,000? Yes. अभी मैं आउटफ्लो का टोटल कर रहा हूँ 120 प्लस 7,500 प्लस 54,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 223,500 परफेक्ट है ना? माइनस 2,68,000 कर दो, कितना आ रहा है? 44,500। लोन लेने की ज़रूरत, तो 44,500 नेक्स्ट मंथ का एडजस्टेड क्लोजिंग, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग, नो इंटरेस्ट नो लोन, परफेक्ट एकदम। 44,500 प्लस 1,88,375 232,875 चकास, माइनस द वैल्यूज 1,60,000 प्लस 35 प्लस 2 197, करेक्ट एकदम? ओके, माइनस 232 875 35,875। कोई लोन लेने की जरूरत? 35,875 एब्सोल्युटली नो लोन रिक्वायर्ड। 35,875 ऊपर प्लस 173 कर दो, 2,08,875 1,44,000 प्लस 30 प्लस 2 176 minus 2,08,875 is it 32,875? No loan again, 32,875। चलो 32,875 ऊपर प्लस 1,85,625 2,18,500 total of outflow 96 plus 7,500 40 45 and 2 1,90,500 आ रहा है, माइनस 2,18,500 28 पॉजिटिव। कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं, फिर से आंसर 28। एक्चुअली लोन का कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्यों? कोई काम ही नहीं करना पड़ा हम लोगों को, सही जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, बट फिलहाल यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चला लोन पे, ना ही कभी हमने लोन ली, ना ही कभी उसका हमने रीपेमेंट किया। सो डैश एंड डैश इट कंटिन्यूस, टू गुड। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, हमारा लोन क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में थोड़ी गलती कर दी। आगे के सारे कैलकुलेशंस रब कर रहा हूँ मैं, एकदम आराम से आप मेरे साथ करेंगे, इस पर प्रॉब्लम नहीं है। 173 37,500 प्लस 115,875 37,500 प्लस 115,875 153,375। आगे के सारे कैलकुलेशंस रब कर रहा हूँ मैं, टेक इट स्लो। कैश बजट ऐसा ही कॉन्सेप्ट है गाइस, थोड़ा भी हमने कैलकुलेशन यहाँ वहाँ कर दिया ना, पूरा क्वेश्चन हिल जाता है। मैं सारे कैलकुलेशंस फिर से करूँगा, करेक्ट है। अभी यहाँ पे भी हम कैलकुलेशंस तो थोड़े चेंज कर रहे हैं। लास्ट 3 मंथ्स के कैलकुलेशंस में आपको फिर से दिखा रहा हूँ। उन्होंने लोन बोला है तो लोन तो आना चाहिए यार। चलो 44,500 बरोबर था, मैं चेक कर रहा हूँ पहले। 40 प्लस 117,750 157 करेक्ट था, प्लस 1,10,250 268 करेक्ट था, माइनस 223,500 44,500 ओपनिंग में 44,500 प्लस 153,375 197,875 माइनस 197,875 ही बैलेंस बच रहा है। यहीं पे लोन आ गया ना अपना,
चकास है। अभी ये 875 रुपीज़ ही है, उन्होंने बोला है कि मिनिमम कितना होना चाहिए 10, और हम लोन भी जो ले सकते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 10 में ही आएगा, तो लोन भी अपने को 875 प्लस 10 नहीं, मतलब पूरा 10,000 का लोन लेना पड़ेगा। सो बॉस 10,000 का लोन लेंगे तो अपना बैलेंस हो जाएगा 10,875, और ये 10,875 हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया। पर उसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम लोग अप्रैल में लोन ले रहे हैं तो इसका रीपेमेंट मैं इमीडिएटली जाके मई में कर दूंगा। सो मई में 10,000 का लोन रीपेमेंट माइनस, और इस पे 12% इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। सो 10,000 पे 12%, पर हम एक महीने में पे कर रहे हैं, भूलना मत आप। सो 1200 रुपये आपको जो दिख रहा है वो 12 महीने का इंटरेस्ट है, अपने को तो एक ही महीने का इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, बॉस 100 रुपये का इंटरेस्ट भरेंगे हम लोग। So 10,000 repayment of loan and 100 rupee is the interest. Clear? चलो अब कैलकुलेशन फिर से एक बार, 10,875 प्लस 173, 1,83,875। अभी इसका टोटल 144 प्लस 30 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 100, 144 प्लस 30 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 100, 1,86,100 माइनस 1,83,875, 2,225 नेगेटिव ना, नेगेटिव चला गया बॉस माइनस में। अब फिर से लोन लेना पड़ेगा, तो लोन कितना लेंगे हम 10 लेंगे, तो भी बैलेंस 10 के नीचे रहेगा। दे सेड मिनिमम बैलेंस 10 होना चाहिए अपना। अगर मैं 2,225 पे माइनस 10,000 का लोन लेता हूं तो मेरे पास हाथ में बचेगा 7,775, नहीं चाहिए, मिनिमम 10,000 होना चाहिए मेरे पास। तो कितने का लोन लूं, मल्टीपल ऑफ 10 में ही लोन मिलेगा, 10 के बाद मल्टीपल 20, सो आई विल हैव टू बोरो 20,000। चलो तो बैलेंस कितना बचेगा 17,775, चेक करो 20,000, अभी कोई मिस्टेक नहीं आना चाहिए अपना, 2,225, 17,775 आएगा ना, 17,775 अपना ओपनिंग हो गया नेक्स्ट मंथ का। पर उसका मतलब है कि हमें 20 के लोन पे क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो पहले तो रीपेमेंट ऑफ लोन 20, और 20 का 12% फॉर 1 मंथ 200 रुपया इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन 17,775 प्लस 185,625, 185,625 प्लस 17,775, टेल मी सर 2,03,400 प्लस है ना, जकास एकदम। आउटफ्लो का टोटल 96 प्लस 7,500 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 200, बोलो कितना आ रहा है, करो फिर। 2,10,700 आ रहा है मेरा, एक बार चेक करो फटाफट। 96 7,500 बरोबर है, माइनस करो 2,03,400 से, 2,03,400 माइनस 2,10,700, 7,300 नेगेटिव आ रहा है। तो बॉस फिर से 10,000 का लोन नहीं चलेगा, 20,000 का लोन लेंगे। 7,300 में 20,000 का अगर लोन लेंगे हम लोग तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास, 12,700। दैट्स द आंसर। मैं वही सोच रहा था कि लोन लिया तो इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा और रीपेमेंट क्यों नहीं आ रहा, एंड दिस एक्चुअली गिव्स यू प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द चैप्टर। क्यों कर रहे हैं ये कैश बजट। अभी देखो कैसे पता चला हम लोग को यहाँ पे कि जैन में कोई पैसे की जरूरत नहीं है, फेब भी अच्छा चला गया, मार्च भी अच्छा चला गया, अप्रैल में 10,000 शॉर्ट दिख रहा है। अगर मैं कैश बजट नहीं बनाऊं अभी तो अप्रैल में जाके सीधा 10,000 शॉर्ट आएगा, तो पैसा कहां से निकालोगे। फ्यूचर प्लानिंग करके रखें हम लोग, हमें पता चले कि हमारा पैसा शॉर्ट है तो हम पहले से जमा करके रखें, देन्स वी गो अहेड। कॉन्सेप्ट क्लियर, पक्का। सो 10,000 का लोन लिया हम लोग ने,
तो अगर लोन ले रहे हो तो इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ रीपेमेंट और उसका इंटरेस्ट. दिस इज प्रैक्टिकल यूटिलिटी. इट्स लाइक अपना फैमिली सिस्टम बजट. अब एक महीने में डैड के पास चले गए और डैड को बोला डैड इस महीने में 50,000 चाहिए, कहाँ से निकाले वो? सो बॉस उसको हम अगर जैन से बोल के रख दे कि फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से 50,000 चाहिए, तो वो जैन से प्लानिंग चालू करे ना उसकी. अगर अप्रैल में जाके बोलोगे कल 50 दो तो कहां से देंगे वो? सो वी नीड टू प्लान इट प्रॉपरली. दिस इज कैश बजट. क्लियर? टू गुड. चलो कॉपी नाउ. देन वी कैन गो टू क्वेश्चन नंबर 3.